Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, today we are going to do the software design part 2 lecture, in which we will discuss in detail about the architectural design. In the previous lecture of software design part 1, we have discussed some common things regarding the software design. Now, for each software development process, in the design part, we need to design the software architecture, maybe from different perspective point of view, from physical point of view, from development point of view, from just view point of view, yeah, from just block diagram. So at, at one stage we had to create we have to create the software architecture in order to understand the global view that what kind of a software that we are going to develop. Okay, so today is more focused with architectural design. So whenever you want to develop software, every teacher or even the software houses where you work, you need to develop the software architecture. So this is the software that we are going to develop to show the user. The today's topics are covered as architectural design decisions, architectural views, architectural patterns, and application architectures. Architectural design is concerned with understanding how a software system should be organized and designing the overall structure of that system. कि किस तरह से जो है वो आपका जो है हाउ हार्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से उसकी होगी एज ए ग्लोबल व्यू कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे. ठीक है. Architectural design is the critical link between design and requirements engineering, as it identifies the main structural components in a system and the relationship between them. When we are done with the requirements engineering process, तो उसके बाद जो है वो हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि वट एवर द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव गैदर्ड वी आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इस सिस्टम के होंगे जो कि इस आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेंगे. एंड ऑफ कोर्स विद इन दोज कंपोनेंट्स देयर विल बी फर्दर स्टेप्स, देयर विल बी फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट्स एज वेल, बट एज अ होल वील डिस्कस अबाउट द major component. For example, if you go to the NADRA then database, we can discuss about the registration of NIC, the registration of birth certificate or marriage certificate. So the marriage certificate, processing of marriage certificate, processing of NIC, processing of birth certificate will be the all of these three things will be the major components of the NADRA database. The output of the architectural design process is an architectural model that describes how the system is organized as a set of communicating components. क्या आउटपुट क्या होगा कि सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेगा कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स को, सारे के सारे कंपोनेंट आपस में किस तरह से जो वो कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल अ सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ अ पैकिंग रोबोट कंट्रोल सिस्टम इज गिवन. देयर आर सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स से किस तरह से आर्किटेक्चर होना चाहिए. विल डिस्कस अबाउट दोज इन दिस लेक्चर. लेकिन सिंपली जो है आपके पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं और उनकी आपस में कनेक्टिविटी होती है. जिस तरह जैसे एग्जाम्पल के एक विजन कंट्रोल का एक एग्जाम्पल के विजन सिस्टम है, उसकी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में पता चले कौन सा जो है उसकी रोबोट की आर्म कंट्रोलर होगा, उसका ग्रिप कंट्रोलर होगा. एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो पैकेजिंग सिलेक्शन सिस्टम होगा और पैकेजिंग सिस्टम क्या होगा, और विजन के अंदर आर्म कंट्रोलर होगा और ग्रिपर कंट्रोलर होगा. एंड देन योर कन्वेयर कंट्रोलर. दीज आर द डिफरेंट components of this packing robot control system. अब इसमें ये जो अलग से बाउंड्री बनाएगी means these components work together, combine together. Communication between these components is more important, and whatever the other components who are going to communicate with them, they are going to communicate with both of them together. Same way as packaging selection system and packaging system. There is no hard and fast rule for this notation, but as this highlight area clearly depicts that these both are components are going to work together and they'll communicate together with all of these rest of the components. Architectural abstraction. Architecture in this model is concerned with the architecture of individual programs. At this level, we are concerned with the way that an individual program is decomposed into components.
कि आर्किटेक्चर स्मॉल इज कंसर्न विद द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम, बिकॉज कंपोनेंट्स वो भी एक प्रोग्राम ही होगा जो इम्प्लीमेंट होगा. एंड दिस लेवल वी आर कंसर्न द वे दैट इंडिविजुअल प्रोग्राम इज कंपोज इनटू कंपोनेंट्स. Architecture in the large is concerned with architecture of complex enterprise system that include other systems. के smaller level में कहेंगे वो set of different individual programs होगा, but the larger scale हम कहेंगे वो architecture of complex enterprise system होगा that include other systems, जिसके अंदर बहुत सारे जो systems available होंगे, programs and program components. These enterprise systems are distributed over different computers, maybe in a distributed computing environment, उसमें भी ओन्ड एंड मैनेज मतलब डिफरेंट कंपनीज. तो छोटे से छोटा जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे उसके अंदर भी आर्किटेक्चर बनाएंगे, वो बड़े से बड़ा जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर भी जो आर्किटेक्चर बनेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम. लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होगा, नॉट ऑन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट. वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो कि हमें एक व्यू देगा जिस तरह यहाँ पे फॉर द एंटरप्राइज सिस्टम के लिए. एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर. एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक्सप्लिसिटली हम उस चीज़ को डिज़ाइन करें. स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एक्सप्लिसिटली, अगेन नॉट ओनली कि हम उसको जो है वो यूज केसेस में डिफाइन करें या हम जो है उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफाइन करें या रिक्वायरमेंट्स रखें or non-functional requirements, but we explicitly need to design that architecture. Stakeholder communication architecture may be used as a focus of discussion by system stakeholders. Stakeholders के दरमियान डिस्कस हो सकता है कि ये आर्किटेक्चर है, ये कंपोनेंट्स होंगे, this is our vision of the system after gathering the requirements. System analysis means that analysis of whether the system can meet its non-functional requirements is possible. कि वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से जो है वो मीट करता है या नहीं करता. लार्ज स्केल रीयूज. द आर्किटेक्चर में बी रीयूजेबल अक्रॉस अ रेंज ऑफ सिस्टम्स. प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर्स में बी डेवलप्ड. मीन्स दैट आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स दैट कैन बी रीयूजेबल इन अ रेंज ऑफ सिस्टम्स और नॉट, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम आर्किटेक्चर्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड दैट आर सिमिलर डोमेन. As I have given you an example of a banking system. So when you go and make an assignment of a banking system, you might find that there are already developed major banking systems available over the internet, so you can follow them. So they are reusable components across them. So you can reuse those components that are already available. Or product line architectures may be developed. Product line architectures means we might have discussed about the software as a product. क्योंकि पहले जो थी वो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो था वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में डेवलप होता था और कंपनी उसको जो है वो सेल आउट करती थी डायरेक्टली, बट नाउ सॉफ्टवेयर इज बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट. दैट इज आल्सो सिंस मोर देन 2 decades, because when you go in the supermarkets, not in the Pakistan but in European supermarkets, you may find that apart from your groceries things in the supermarket, there is an electronic section in the supermarket as well, which contains different laptops, mobile phones and software products as well. तो वहाँ पे आप सिमेंटिक नॉर्टन एंटीवायरस की सीडी या डीवीडी पड़ी होगी, वहाँ पे विंडोज़ की डीवीडी पड़ी होगी, ऑफिस की डीवीडी पड़ी हुई होगी. तो वो जो है आप वहाँ से उठा के अपनी कार्ट के अंदर यू कैन प्लेस दैट. व्हेन यू गो टू द पॉइंट ऑफ सेल्स लोकेशन, यू कैन बाय दैट सॉफ्टवेयर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन विथ योर ग्रोसरी थिंग्स लाइक योर ब्रेड एंड मिल्क एज वेल. ठीक है, तो नाउ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट. तो जब वहाँ वो प्रोडक्ट लाइन की बात करें, देन डिफरेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. जिस तरह आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इज अ प्रोडक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट. जैसा टोयोटा की मुख्तलिफ गाड़ियाँ, सुजुकी की हैं, आपकी वेगनार है, आपकी जो है वो अल्ट्रो है, आपकी जो है वो कदाशी है, योर डिफरेंट रेंज ऑफ द कार्स. सो दीज आर द प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ दैट कंपनी. सो प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर मीन्स एवरी प्रोडक्ट विल बी हैविंग इट्स ओन आर्किटेक्चर, बट समथिंग विल बी कॉमन. आर्किटेक्चर में भी डेवलप, बिकॉज ऑफिस के अंदर भी चीज़ें कुछ कॉमन होंगी, कंपोनेंट्स जो कि विजुअल स्टूडियो के अंदर, जो कि विंडोज़ के अंदर, तभी ये एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम कर सकती हैं. उनका जो आपने देखा होगा विंडोज़ डायलॉग बॉक्स जब खुलता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, विजुअल स्टूडियो का, विंडोज़ का, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशंस. Simple informal block diagrams showing entities and relationships
are the most frequently used method for documenting software architectures. सिंपल आपका इनफॉर्म ब्लॉक डायग्राम्स होगा जो कि एंटिटीज के तौर पे शो कर रहा होगा, जैसे आपने ईआरडी की एंटिटीज देखी है तो वो भी इस तरह की एंटिटीज के तौर पे शो कर रहा होगा, एंड रिलेशनशिप्स जो वो इस्तेमाल की जाती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिजाइन करता है. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट दीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज दे लैक सिमेंटिक्स, do not show the types of relationship between entities nor the visible properties of entities in the architecture. मगर ये चीज़ क्रिटिसाइज की जा रही है दे लाइक सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स कहा जाता है द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या डेटा अबाउट द डेटा, यू कैन से दैट मेटा डेटा बट नॉट एग्जैक्टली मेटा डेटा. लेकिन सिमेंटिक्स मीन अंडरस्टैंडिंग. देयर आर टू लेक्सिकल वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर, दैट आर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स. सिंटैक्स का मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड मैचिंग. सिमेंटिक का मतलब ये कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका मीनिंग जो है दो चीज़ों का आपस में मैच होना. जिस तरह से जब स्काइप वगैरह अभी आपने देखा होगा वॉइस रिकग्निशन है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, तो स्काइप के अंदर क्या होता है कि जब एक कमर्शियल आपने ज़रूर देखी होगी कि चाइनीज़ बंदा एक अमेरिकन से बात कर रहा है, चाइनीज़ अपनी चाइनीज़ में बात कर रहा है, अमेरिकन अपनी अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है. whenever person speaks in English, that is translated into the Chinese language, and when a person speaks in Chinese language, that is translated in English language. तो अगर वर्ड टू वर्ड अगर उसकी ट्रांसलेशन होगी तो ऑफकोर्स वो पूरी उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, जिसे गूगल ट्रांसलेटर करता है अक्सर. तो वो उसकी सिमेंटिक्स के ऊपर काम करते हैं कि जो चीज़ चाइनीज़ बंदे ने कही है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो, उसकी मीनिंग जो है वो चेंज ना हो जो कि चाइनीज़ बंदे ने बात की है, जिस एंड वाइस वर्सा फ्रॉम द इंग्लिश पर्सन टू द चाइनीज़ पर्सन. तो उसको कहा जाता है सिमेंटिक्स, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम उसको रिटेन रख सकें. सो depends on the use of architectural models, the requirements for model semantics depending how the model will be used. Box and line diagram, very abstract. They do not show the nature of component relationships nor the externally visible properties of the subsystems. However, useful for communication with stakeholders and for project planning. कह रहा है कि box and line diagram जो अभी मैंने पहले जो है ये हमने देखा, this is a box and line diagrams. But they do not show nature of component relationship. आपस में उनका रिलेशनशिप किस तरह से है, कौन सा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कहाँ से इनपुट जा रहा है, कहाँ से आउटपुट जा रहा है, क्या इनपुट जा रहा है, कौन से सब सिस्टम से, वो चीज़ विजिबल नहीं है. However, used for communication with stakeholders for project planning है. लेकिन at the point of start, at the initial start आप stakeholders के साथ you can communicate that architecture for the project planning. ये components जो हैं वो होंगी. Use of architecture models as a way of facilitating discussion about the system design. A high-level architectural view of the system is useful for communication with the system stakeholders and project planning because it is not cluttered with the detail. Stakeholders can relate to it and can understand an abstract view of the system. They can then discuss the system as a whole without being confused by detail. तो जो ऊपर के लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो इस तरह के हाई लेवल आर्किटेक्चर को ही पसंद करती है. वो देखते हैं कि कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. डिटेल लेवल जो आर्किटेक्चर होगा दैट इज नॉट फॉर द स्टेक होल्डर्स बट मोर ऑफ काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट टीम और द डिजाइन टीम. बट एज अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एन आर्किटेक्चर दैट हैज बीन डिजाइन, द एम हियर टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट सिस्टम मॉडल दैट शोज द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम, देयर इंटरफेसेस एंड देयर कनेक्शंस. What will be the end of the architecture design? या बात का लुब्बे लुबाब ये कि a complete system model that shows different components, इसके अंदर different components होने चाहिए, their interfaces, how they interact with each other, and their connections, how they are connected with each other. So this is the main goal of the designing an architecture. Architectural design decisions. Architectural design is a creative process, so the process differs depending on the type of system being developed. किस तरह का सिस्टम बनाना है उस हिसाब से जो है प्रोसेस डिफर हो सकता है. आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, आपका डेटा एनालिसिस आपका सिस्टम है, आपका कंपाइलर की तरह सिस्टम है. सो यू हैव डिफरेंट पैटर्न्स एज वेल डिजाइनिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. However, number of common decisions open span all design processes, and these decisions affect the non-functional characteristics of the सिस्टम. नंबर ऑफ कॉमन डिसीजन जो कि इस्तेमाल होंगे आपके जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर डिजाइन करते वक्त, और दिस डिसीजन अफेक्ट द नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम. इसकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं
कि हाउ द सिस्टम बी डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस हार्डवेयर कोर्स प्रोसेसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, व्हाट आर्किटेक्चर पैटर्न्स आर स्टाइल्स माइट बी यूज्ड, what strategy will be used to control the operation of the components in the system, how should the architecture of the system be documented, what architectural organization is the best for delivering the non-functional requirements of the system, how will the structural components in the system be decomposed into subcomponents, किस तरह decompose होंगे, what will be the fundamental approach used in structure of the system, is there a generic application architecture that can act as a template for a system that is being designed. तो आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसको बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि मेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो होती ही जो है वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि दे इंक्लूड परफॉर्मेंस इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज, आपके जो कल्चरल पॉलिटिकल इश्यूज या लीगल इश्यूज, वो मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी होती नहीं है. सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिकॉज दीज आर नॉट प्रॉपर्ली डिपिक्टेड इन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर रीयूज. Systems in the same domain often have a similar architecture that reflect domain concepts. Application product lines are built around a core architecture with variants that satisfy particular customer requirement. The same domain के अंदर जो है similar architecture अक्सर आपको दिखाई देते हैं that reflect the domain concepts. And application product lines are built around a core architecture with variants that satisfy particular customer requirements. कि आपकी जो product lines are built around a core architecture. Core architecture means आपका विंडोज के अंदर जिस तरह डॉटनेट फ्रेमवर्क है, तो ऑफिस भी आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करता है, विजुअल स्टूडियो भी आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करता है, विंडोज के अंदर भी डॉटनेट फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है. तो डॉटनेट फ्रेमवर्क कंटेन्स योर कोर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो वो चीज जो होगी वो हर प्रोडक्ट लाइन का जो होगा वो हिस्सा होगा. द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम में बी डिजाइन अराउंड वन और मोर आर्किटेक्चर पैटर्न्स और स्टाइल्स. These captures the essence of an architecture and can be instantiated in different ways. कि आर्किटेक्चर जो है सिस्टम का वो डिफरेंट आर्किटेक्चर पैटर्न्स या स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हुए डिजाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डोमेन के हम कौन से डोमेन पे काम कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो है दिस कैप्चर द एसेंस ऑफ एन आर्किटेक्चर एंड कैन बी इंस्टेंशिएटेड इन डिफरेंट वेज. किसी न किसी आर्किटेक्चर के पैटर्न को फॉलो करता है और उसी को जो है वो इंस्टेंस को इनिशिएट करता है. ठीक है. Architectural views. What views or perspectives are useful when designing and documenting a system's architecture? What notation should be used for describing architectural models? Each architectural model only shows on one view or perspective of the system. यानी कि कौन से views or perspectives हम use कर सकते हैं while designing or documenting a system architecture? There may be several views. कौन सी notations हम इस्तेमाल करेंगे for system architecture? Entity बनाए तो उसको गोल बनाए, सर्कल बनाए, उसको रेक्टेंगल बनाए, या उसको जो है वो रेक्टेंगल डिजाइन करके उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के हवाले से और उसको डिकम्पोज करके दो हिस्सों में कौन सी नोटेशन यूज करें इवेंचुअली. ईच आर्किटेक्चर मॉडल ओनली शोज वन व्यू और पर्सपेक्टिव सिस्टम. हर आर्किटेक्चर मॉडल एक ही पर्सपेक्टिव शो करेगा. किस इट माइट शो हाउ अ सिस्टम इज डिकम्पोज इनटू मॉड्यूल्स, के मॉड्यूल्स के अंदर डिकम्पोज किस तरह से किया है, हाउ द रन टाइम प्रोसेसेस इंटरैक्ट और डिफरेंट वेज इन व्हिच सिस्टम कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नेटवर्क, या कैसे जो है वो कंपोनेंट्स आपस में जो रन टाइम पे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे. फॉर बोथ डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन यू यूजुअली नीड टू प्रेजेंट मल्टीपल व्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. कि आपने जो है वो डिजाइन के हवाले से एंड डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से यू माइट नीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर व्यूज ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. फॉर एग्जांपल आपका लॉजिकल व्यू किस तरह से होगा सॉफ्टवेयर का, व्हाट विल बी योर फिजिकल व्यू, हाउ विल बी योर प्रोसेस व्यू, हाउ विल बी योर डेवलपमेंट व्यू. सो इस सेम सिस्टम के लिए डिफरेंट व्यूज जो है पॉसिबल हो सकते हैं. A logical view which shows the key abstractions in the system as object or object classes, कि जो है वो की एब्स्ट्रैक्शंस जो होंगे, की मॉड्यूल्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट क्लासेस के तौर पर शो करेगा. A process view which shows how at run time the system is composed of interacting processes, के रन टाइम पे प्रोसेसेस कौन से होंगे जो आप इसमें इंटरेक्ट करेंगे. डेवलपमेंट व्यू में which shows how the software is decomposed for development, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होंगे. A physical view which shows system hardware and how software components are distributed across the processes in the system, कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है किस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो ये इस चीज़ को कहा जाता है 4+1 मॉडल व्यू. Representing architectural views, some people argue that a unified modeling language is an appropriate
नोटेशन फॉर डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर कि जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द यूएमएल, जो कि आपके क्लास डायग्राम होते हैं, आपके जो है वो यूज केस डायग्राम्स होते हैं, आपके स्टेट डायग्राम्स होते हैं, आपके एक्टिविटी डायग्राम्स होते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर आई डिसएग्री विद दिस एज आई डू नॉट थिंक ऑफ द यूएमएल इंक्लूड्स abstractions appropriate for high level system descriptions. Architectural description languages have been developed but are not widely used. यूएमएल कहता है कि वो जो है appropriate abstractions जो है for high level description को इंक्लूड नहीं करता. लेकिन मैं समझता हूँ यूएमएल जो है वो जिस तरह क्लास डायग्राम है वो दैट इज सफिशिएंट इनफ, जो कि स्टार्ट ऑफ द सिस्टम के लिए आपका जो है ज़रूरी है. लेकिन ऑफ कोर्स इट डजंट कंटेन द सिमेंटिक्स. एडीएस जो आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस जो है वो डिज़ाइन की गई हैं ताकि हम आर्किटेक्चर उनके थ्रू डिज़ाइन कर सकें. लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑथर्स, बिकॉज इस ऑथर ने जो है काफ़ी जो है वो रिसर्च की हुई है आर्किटेक्चर के हवाले से, तो ही सेड दैट दीज आर नॉट वाइडली यूज, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, हम खुद ही उसको डिज़ाइन कर लेते हैं. आर्किटेक्चरल पैटर्न्स. So there are different architectural patterns. आपके ब्लैक बोर्ड सिस्टम है, ब्रोकर्स पैटर्न है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इम्प्लिसिट इन्वोकेशन, लेयर्स, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज. देयर आर सेवरल आर्किटेक्चर पैटर्न्स. आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे. फ्रॉम विच फ्यू ऑफ द पॉपुलर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स जो है हम जाके अभी जो है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो कि मोस्टली इस्तेमाल होते हैं. These patterns उनको कहते क्या हैं? Patterns are means of representing, sharing and reusing knowledge. Okay, representing, sharing और reusing knowledge कि जो हमने जो है जो बने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किए किसी न किसी पैटर्न के थ्रू, तो हम उसको शेयर कर सकें और यूज़ कर सकें उस नॉलेज को फॉर द फर्दर आर्किटेक्चर डिज़ाइन. An architectural pattern is a stylized description of good design practice which has been tried एंड टेस्टेड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स. कि आपके आर्किटेक्चरल पैटर्न जो है वो एक उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है. ऐसा वो एक स्टाइल बन चुका है जो कि ट्राई हो चुका है और टेस्ट हो चुका है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में. पैटर्न शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन दे आर एंड व्हेन दे आर नॉट यूजफुल, कि वो कब इस्तेमाल हो सकते हैं, यूजफुल हैं, कभी यूजफुल नहीं है, इसलिए तो डिफरेंट पैटर्न डिज़ाइन किए गए हैं. Patterns may be represented using tabular and graphical descriptions. कि आपकी जो टेबुलर फॉर्मेट में या ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के तौर पे जो है वो इलस्ट्रेट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वन पैटर्न इज मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न. सो मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न जो है इट सेपरेट्स प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन फ्रॉम द सिस्टम डेटा. इज अ वेरी वेरी फेमस जो है वो पैटर्न जिसको हम एमवीसी पैटर्न कहा जाता है. इसको द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू थ्री लॉजिकल कंपोनेंट्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर. द मॉडल कंपोनेंट मैनेजेस द सिस्टम डेटा. आपका जो है ये मॉडल कंपोनेंट जो कि सिस्टम डेटा कंटेन करेगा, एनकैप्सुलेट्स एप्लीकेशन स्टेट, नोटिफाइज व्यू ऑफ स्टेट चेंजेस. द व्यू कंपोनेंट डिफाइंस एंड मैनेजेस हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड टू द यूजर. जिस तरह के व्यू जो है वो बताता है रेंडर्स मॉडल, रिक्वेस्ट मॉडल अपडेट्स, सेंड यूजर इवेंट्स टू द कंट्रोलर. द कंट्रोलर कंपोनेंट मैनेजेस यूजर इंटरेक्शन एंड पासेस द इंटरेक्शन टू द व्यू एंड मॉडल. जो कंट्रोलर जो इंटरेक्शन कंपोनेंट है वो जो कि व्यू और मॉडल के इंटरेक्शन को आपस में कंट्रोल करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल बी एक्सेसिबल टू द व्यू एंड व्हाट काइंड हाउ इट विल बी एक्सेस्ड. ठीक है. When used when there are multiple ways to view and interact with the data, also used when the future requirements for interaction and representation of data are unknown. तो हम MVC कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब मुख्तलिफ व्यूज़ हों डेटा को देखने के. फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग डेटा है, तो बैंकिंग डेटा फॉर द कस्टमर्स बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए देखने का व्यू डिफरेंट होगा और कस्टमर्स के देखने का व्यू डिफरेंट होगा. एंड इवन फॉर द व्यू ऑफ द डेटा ओवर द इंटरनेट, आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर उसका व्यू डिफरेंट होता है, जो मोबाइल बैंकिंग के अंदर आपका व्यू उसका डिफरेंट होता है, एटीएम के अंदर उसका व्यू डिफरेंट होता है, जब आप बैंक में जाते हो उसका अकाउंट का व्यू डिफरेंट होता है. ठीक है. अलाउज द डेटा टू एंड प्रेजेंटेशन डेटा आर अननोन एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. के फ्यूचर में अगर हम जो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी है, व्यू चेंज करना, तो इट इज़ बेटर टू सेपरेट द मॉडल, द डेटा एंड द व्यू. Allows the data to change independently of its representation and vice versa.
कि वो चेंज हो सके डेटा जो है वो व्यू से इंडिपेंडेंटली। सपोज presentation of the same data in different ways with the changes made in one representation shown in all of them, कि डेटा को हम चेंज कर सकें और जो चेंजेस मेड होंगी वो सभी व्यूज में जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कैन इन्वॉल्व एडिशनल कोड एंड कोड complexity when the data model and interactions are simple. Okay, it can lead to the complexity because we separated the two different things. So model, view and controller, this is the view of the MVC. And an example of MVC is web application architecture using the MVC pattern. So we have a browser, we have a view, we have a controller, and we have a model. So form display to user events, change notification, refresh request, and update request. Controller is the HTTP request processing, application specific logic, data and generation. मॉडल बिजनेस लॉजिक और उसका डेटाबेस है, और व्यू के अंदर आपका डायनामिक पेज है, आप जनरेशन है, और आपकी फॉर्म्स मैनेजमेंट है। डायनामिक पेज जनरेशन जो आपके डेटा व्यू होगा, फॉर्म जनरेशन में जब आप यूजर से डेटा इनपुट करोगे तो वो दे विल बी डिफरेंट व्यूज। लेयर्ड आर्किटेक्चर और वेब एप्लीकेशन में भी आपके पास क्या होता है कि आप डेटाबेस अलग रखते हो और उसकी जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो अलग रखते हो, उसके डिफरेंट व्यूज आप जो है अलग रखते हो। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं, जिस तरह आप एक वेबसाइट जो है आपके किसी भी CMS वगैरह पर डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस पर डिज़ाइन करते हैं, तो आप जो भी आप डेटा एंटर करते हैं उसके डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं उस डेटा को व्यू करने के लिए। तो अपनी डेटा वेबसाइट का जो व्यू है कभी भी चेंज कर सकते हो आप, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स में जो भी आप टेम्पलेट चूज़ करोगे तो पूरे का पूरा डेटा जो है वो आपका उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देगा। तो उस चीज़ को प्लीज़ इसको ट्राई करना वर्डप्रेस पे एक सिंपल सी वेबसाइट बना के, क्योंकि वो व्यू का इंफॉर्मेशन जो है उसका टेम्पलेट और जो डेटा है वो अलग रखता है, वो डेटा टेम्पलेट में मर्ज नहीं करता। इसलिए जब भी आप कोई नया टेम्पलेट अप्लाई करते हो तो वो डेटा को उसी टेम्पलेट में जो है वो इलस्ट्रेट करके आपको दिखा देता है। Another software design pattern is layered architectures. It is used to model the interfacing of the subsystems. It organizes the system into set of layers. तो different subsystems के अंदर जो है उसको मॉडल करता है। It contains different layers, each of which provides a set of services, and it supports the incremental development of subsystems in different layers. When a layer interface changes, only the adjacent layer is affected. कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ऑफ सबसिस्टम्स होंगी कि मुख्तलिफ सबसिस्टम्स जो है ऐसा ऐसा उसके अंदर डेवलप होंगे और हर लेयर का इंटरफेस दूसरी लेयर के साथ होगा। तो अगर जो है कोई लेयर चेंज होगी, सिर्फ उसी दोनों लेयर्स का जो है आपस में इंटरफेस चेंज होगा और ना ही के पूरे सिस्टम्स का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लेयर्ड आर्किटेक्चर। ऑन द टॉप यू हैव यूजर इंटरफेस, at the down of the top is the user interface management, authentication and authorization, and after that you have a core business logic, application functionality, system utilities, and in the bottom you have a system support, operating system, database. So there are 4 layers depiction as a the layer architecture. तो ये एक सैम्पल है, आप इसको जो डिकम्पोज कर दे फर्दर आप 10 लेयर बना लो, 10 8 लेयर बना लो। What is the description? It organizes the system into layers with a related functionality associated with each layer. Each layer will provide different set of services. A layer provides services to the layer above it, so the lowest level layers represent core services that are likely to be used throughout the system. तो जो नीचे वाली लेयर है वो अबव वाली लेयर को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और जो आपकी सबसे लास्ट जो लेयर्स होती हैं दैट रिप्रेजेंट कोर सर्विसेज लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस। A layered model of system for sharing copyright documents held in different libraries. This is an example of it. We'll see to that. देख लेते हैं कि आपका जो एक iLearn सिस्टम है, जो एक लाइब्रेरी का सिस्टम है, उसको जो है एक लेयर्ड आर्किटेक्चर से डिज़ाइन किया कि आपका ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस होगा, उस लर्निंग का कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज होंगे, ग्रुप मैनेजमेंट होगी, एप्लीकेशन मैनेजमेंट होगी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट होगी, न्यू एप्लीकेशन सर्विसेज आपकी ईमेल होगी, मैसेजिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, न्यूज़पेपर आर्काइव, वर्ड प्रोसेसिंग, सिमुलेशन, वीडियो स्टोरेज, रिसोर्स फाइंडर, स्प्रेडशीट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, हिस्ट्री आर्काइव एंड यूटिलिटी सर्विसेज आपके ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, इंटरफेसिंग, यूजर स्टोरेज, एप्लीकेशन स्टोरेज, सर्च। इससे नीचे भी एक और लेयर हो सकती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस वगैरह रख सकते हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली, इट इज़ ऑब्वियस कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस ही होगा नीचे, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एन आर्किटेक्चर ऑफ iLearn सिस्टम, जो कि एक लाइब्रेरी का जो है वो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है।
तो when building new facilities on top of existing systems, ऑलरेडी आपके पास सिस्टम बने हुए, उसके ऊपर एक और लेयर आपने ऐड करनी है, तो उसके लिए बेहतर लेयर्ड आर्किटेक्चर आप यूज करें. When the development is spread across several teams and each team responsibility for a layer of functionality, कि आपकी जो मुख्तलिफ टीम्स के में मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड की है, मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ टीम्स दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड each layer that has a different set of functionality and each team is responsible for a different layer. When there is a requirement for multi-layer level security, what are the advantages? Advantages are it allows replacement of entire layer so long as the interface is maintained, कि पूरी की पूरी layer आप change कर सकते हो by retaining the interface. Redundant facilities like authentication can be provided in each layer to increase the dependability of the system. In practice, जो से disadvantages of providing clean separation between layers is often difficult, and high level layer may have to interact directly with the low level layers rather than through the layer immediately below it. वो कह रहा है कि इसके disadvantages ये हैं कि जो कभी कभार जो है आपकी जो हाई लेवल लेयर है उसको डायरेक्टली जो लो लेवल लेयर से बात करने की जरूरत पड़ेगी, इंटरेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी उसको बाईपास करके, नॉट नेसेसरली कि वो हर अपने एडजेसेंट लेयर के साथ कम्युनिकेट करें. Performance can be problem because of multiple levels of interpretation of services requests that is processed at each layer. किसी परफॉर्मेंस से इफेक्ट हो सकती है क्योंकि हर लेयर जो डिफरेंट सर्विसेज के हम कहेंगे फोकस करेंगे, इंटरप्रेट करेगी, वो उसकी सर्विस उसी लेयर पे जो है प्रोसेस होंगी. तो हो सकता है किसी लेयर पे ज़्यादा वर्कलोड हो, किसी लेयर पे कम वर्कलोड हो. The third architecture is your repository architecture. आपके सब systems must exchange data. This may be done in two ways. Shared data is held in central database or repository and may be accessed by all the subsystems. कि आपका जो है वो repository architecture है, आपके पास एक shared repository होगी जो कि सारे subsystems उसको access करेंगे, like project repository, and all of these subsystems will be interacting with this repository. And each subsystem maintain its own database and process data explicitly to other subsystems. कि हर सबसिस्टम का उसका इंडिविजुअल बेसिस पे जो है वो डेटाबेस होगा या उसका डेटा होगा. When large amounts of data are to be shared, the repository model of sharing is most commonly used as this is sufficient data sharing, efficient data sharing mechanism. क्योंकि वो रिपोजिटरी की लेयर हम अलग रखेंगे एक लेयर से तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो सेंट्रलाइज शेयर लोकेशन में रखेंगे जब बहुत ज़्यादा डेटा जो होगा हमारा शेयर करना पड़ेगा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान. तो इट इज़ बेटर टू हैव अ रिपोजिटरी आर्किटेक्चर. सो डिस्क्रिप्शन इज ऑल द डेटा इन system is managed in a central repository that is accessible to all the system components. Components do not interact directly, only through the repository. So all the data in a system is managed in a central repository that is accessible to all the system components. All the data in a system is managed in a central repository that is accessible to all the system components. सारे components के दरमियान वो shared होगा. Components do not interact indirectly or directly, even only through the repository. वो repository के जो है through उसको interact करेंगे. You should use this pattern when you have a system in which large volumes of information are generated. कि जब आपके पास volume जो है बहुत ज़्यादा हो. And you may also use it in a data-driven system with inclusion of data in repository triggers an action or a tool. Components can be independent, they do not need to know of the existence of other components. का एडवांटेज होगा कि दूसरा components के अंदर plug and play हो जाएगा कि ऐड हो रहे हैं या जा रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ेगा. Changes made by one component can be propagated to all components. All data can be managed consistently. Backups done at the same time as it is in all in one place. Backup हो जाएगा जब सारे का सारा डेटा एक ही जगह पे होगा, तो चेंजेस जो कंपोनेंट्स के थ्रू जो होंगी वो प्रोपोगेट हो जाएंगी सारे कंपोनेंट्स में क्योंकि वो शेयर डेटा होगा. What will be the disadvantage? The repository is a single point of failure. So if repository goes down, तो आपका पूरे का पूरा system goes down. So problems in the repository affect the whole system. Maybe inefficiency in organizing all communication through the repository जो है अगर सही तरीके से efficiently वो communicate नहीं कर पाएगी तभी हमारे लिए मसला हो जाएगा. Distributing the repository across several computers may be difficult. अगर वो data distribute हो जाए different computers के दरमियान, ठीक है. दिस एन एग्जांपल ऑफ रिपोजिटरी आर्किटेक्चर. IDE आपका प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है, आपके पास यूएमएल एडिटर्स हैं, आपके पास कोड जनरेटर्स हैं, आपके पास जावा एडिटर है, आपके पास पाइथन एडिटर है,
आपका रिपोर्ट जनरेटर, आपका डिज़ाइन एनालाइजर, आपका डिज़ाइन ट्रांसलेटर। दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, मे बी एक आईडी के जो ये हिस्से जिस तरह इक्लिप्स वगैरह। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, जिसमें आप पूरे के पूरे आईडीज़ की जो है वो पूरे डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी, जो कि यहाँ के एक्सेस करके जो है व्हेन यू ट्राई टू जिस तरह से आप इक्लिप्स के अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, या आईडी के अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, नेटबीन्स के अंदर जब आप यहाँ डॉटनेट के अंदर, सो वेन एवर यू लोड C++, उससे रिलेटेड आपका आईडी इन्वायरमेंट सेट हो जाता है। व्हेन यू लोड जावा, तो जावा के वाले से सेट हो जाता है। व्हेन यू लोड C#, C# के वाले से लोड हो जाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो है वो उसका एनवायरनमेंट वो सेट कर देते हैं। इक्लिप्स में स्पेशली जब आप जावा या C++ करोगे तो जावा से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, C++ करोगे तो C रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो ओके गाइस, client server architecture, most infamous architecture, distributed system model which shows how data and processing is distributed across a range of components, can be implemented on a single computer। वो client server architecture सिंगल कंप्यूटर पे भी हो सकता है, जिस तरह से आपके पास ZAMP सर्वर है जो कि आप ही के कंप्यूटर को क्लाइंट सर्वर बना देता है, ठीक है। सेट ऑफ एक्सटर्नल सर्वर्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज सच एज प्रिंटिंग एंड डेटा मैनेजमेंट, कि आप क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हो आपके प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए, आपके डेटा मैनेजमेंट के लिए। एक प्रिंटर होगा जो कि शेयर होगा मुख्तलिफ जो है वो कंप्यूटर्स के दरमियान, मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान। तो इट शुड इम्प्लीमेंट द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सेट ऑफ क्लाइंट्स विच कॉल ऑन दीज सर्विसेज, नेटवर्क विच अलाउज क्लाइंट्स टू एक्सेस सर्विस, ठीक है। दिस इज एन डिपिक्शन ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट 1, client 2, client 3, client 4, and these are different set of services connected through the internet or through a channel or medium of connectivity between them. So catalog server, video server, picture server, web server। और डिस्क्रिप्शन ईजी है, ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने जो है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के अंदर यू माइट हैव हर्ड अबाउट द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। In client server architecture, the functionality of the system is organized into services, with each service delivered from a separate server. Clients are users of these services and access service to the make use of them। थोड़ा सा आपने देखा होगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो भारी है, क्योंकि अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं। मैं 5 बजे उठ के जो है मैंने ये फजर के बाद जो है मैं लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बगैर नाश्ते के, बगैर चाय के, ठीक है ना। तो हम भी आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप भी जो है कुछ अपने लिए थोड़ा सा जो है वो टाइम निकाल के मेहनत करें, ताकि हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो है इसको प्लीज़ जो है ओवरकम कर सकें। अदरवाइज़ आवर एजुकेशन ऑलरेडी बजट भी HEC वालों ने जो उसको रिड्यूस कर दिया, तो हमारा एजुकेशन जो एक लिहाज से जो अफेक्ट ना हो, ठीक है ना गाइस। ओके, सो clients are users of these services and access service to make use of them when used when data in a shared database has to be accessed from a range of locations, मुख्तलिफ range of locations जो है वो data access हो, because service can be replicated, may also be used when the load on a system is variable। जिस तरह आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बहुत होगा, क्योंकि वो डेटा एक डिफरेंट लोकेशन पे होगा और वो एक्सेस होगा मुख्तलिफ लोकेशंस के थ्रू। What with the advantages? The principal advantages of this model is that servers can be distributed across the network. General functionality, that is printing can be available to all the clients and does not need to be implemented by all the services. Disadvantages are each service is a single point of failure, so susceptible to denial of service attacks or service failure. Performance may be unpredictable because it depends on the network, so as well as system. May be management problems if servers are owned by different organization। कि अगर आपका जो है वो कोई भी सर्वर डाउन हो जाएगा तो आप जाहिर सी बात है दूसरा सर्वर आपके पास नहीं है जो उसको आप कर सको, या चैनल अगर डाउन होगा तभी आपको जो है वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस देयर इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट्स may be referred to as a pipe and filter model। A variant of this approach are very common when transformations are sequential। This is the best sequential model which is extensively used in data processing systems, ठीक है। पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर बैच प्रोसेसिंग में जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत सारा डेटा जो बहुत सारी जो कंपोनेंट्स हम एक बैच के अंदर जो डिज़ाइन करके दे दें, फिर दूसरी बैच, फिर तीसरी बैच, फिर चौथी बैच, यूजिंग डेटा प्रोसेसिंग एक्सटेंसिव यूजिंग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम।
नॉट रियली सुटेबल फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम, जिसमें ज़्यादा यूजर्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो, बल्कि पूरे के पूरा जो ह्यूज डेटा हो वो प्रोसेस हो सके। फॉर एग्जांपल आपका वेदर सिस्टम है, तो वेदर सिस्टम जो है उसमें डेटा जो है आपका डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू गैदर हो रहा होगा और प्रोसेस हो रहा होगा, तो उसके लिए उसमें यूज़र के इंटरेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एंड में जो रिजल्ट होगा वो यूज़र उसके साथ हेल्प होगा कि भाई कौन से एरिया में कौन सा वेदर जो है पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आई थिंक पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर विल बी मच बेटर। एग्जाम्पल ऑफ पाइप फिल्टर आर्किटेक्चर यूज इन पेमेंट सिस्टम, आप आइडेंटिफाई पेमेंट्स, आपकी पेमेंट्स आइडेंटिफाई पेमेंट, इशू रिसिप्ट्स फाइंड पेमेंट्स ड्यू, इशू पेमेंट्स रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो है ये जो डेटा है वो ये प्रोसेस होके जा रहा है आपके पास, नहीं कि यूजर्स की रिक्वेस्ट पे ये आ रहा है, ये पेमेंट सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। Description: the processing of data in a system is organized so that each processing component is discrete and carries out one type of data transformation. Data transformation हो रही, data flows as in a pipe and one component to another for processing. एक पाइप के थ्रू प्रोसेस हो रहा हो और जा रहा हूँ, उसमें कोई इंटरेक्शन में तो आपका टू वे कम्युनिकेशन होती है ना, इसमें आपका वन वे कम्युनिकेशन होगी। Commonly used in data processing applications, both batch and transaction processing, where inputs are processed in separate stages to generate related outputs. Easy to understand advantages क्या है उसके लिए, easy to understand and supports transformation reuse workflow style, matches the structure of many business processes. Evaluation by adding transformation is straightforward, can be implemented as either sequential or concurrent system. Disadvantages are the format of the data transfer has to be agreed upon between communicating transformation, के format उसका होना चाहिए कि किस तरह से data transform होगा। Each transformation must pass its input and unpass its output to be agreed from. This will increase the system overhead and may mean that it is impossible to reuse functional transformation that are used in compatible data structures. ये जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर से प्रीवियसली आप पुट दिस इन एक्स्ट्रा स्लाइड्स, लेकिन इसको हम जल्दी से थोड़ा सा जल्दी गो थ्रू करते हैं ताकि हम जो हम पढ़ चुके हैं उसको देखेंगे जो है वो वाकई जो है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो एप्लीकेशन सिस्टम डिजाइन टू मीट ऑर्गेनाइजेशन नीड। General application architecture is an architecture for a type of software system that may be configured and adapted to create a system that meets specific requirements. Generic application architecture कौन सा होगा जो कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए या टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर हो सकता है टू क्रिएट न्यू सिस्टम दैट मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से, सुपर मार्केट के हवाले से वो कस्टमाइज हो सकता है, लेकिन एक जेनेरिक उसकी फंक्शनलिटी एक आपने सिस्टम आर्किटेक्चर बना के रख दिया है, लेकिन हर कंपनी जो नया सुपर मार्केट ऑन करने के लिए जा रही है तो वो उसी जेनेरिक से उठाएगी, फिर उसको कस्टमाइज किया जाएगा उसकी कंपनी की अपनी जो है वो हवाले से। जिस तरह से मैक्स बजट के ऊपर पहले जो है वो सुपरमार्केट की सब्जियां वगैरह नहीं थी, फ्रूट्स नहीं थे, तो फिर उसको डिज़ाइन मॉडिफाई किया गया जो है उसके, ताकि वो सब्जियों के हवाले से इंफॉर्मेशन हो और आपकी फ्रूट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हो। सेम इफ यू गो टू द दाऊद, दाऊद के अंदर सब्जियां भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, तो फिर आपके पास मीट और फिश भी है, तो उसको उसके हवाले से भी मॉडिफाई किया गया। अगर ऐसी कोई सेक्शन होगा कराची वगैरह में, जो तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होंगे, जो होंगे डिवाइसेस होंगी, तो उसके हवाले से भी उसको जो है वो फीचर्स ऐड करते गए जाएंगे, लेकिन बेसिक जो पॉइंट ऑफ इसका दैट विल रिमेन द सेम फॉर दैट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर, जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिजाइन किए गए हैं एज अ डिजाइन चेकलिस्ट, एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ द डेवलपमेंट टीम, एज अ मीन्स ऑफ एक्सेसिंग कंपोनेंट्स फॉर रीयूज, जो पहले हो चुका है उसको हम रीयूज कर सकें। एज अ वोकेबुलरी फॉर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन टाइप्स, वोकेबुलरी हमें मिल जाएगी। जो लाइब्रेरी सिस्टम में बनाना तो हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे लाइब्रेरी सिस्टम, ER डायग्राम लाइब्रेरी सिस्टम या SRS फॉर लाइब्रेरी सिस्टम और ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वी गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दो सिस्टम। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन टाइप? डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसमें डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन होगी, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें ट्रांजेक्शन होंगी, इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है वेयर सिस्टम एक्शंस डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रेटिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, आपकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें आपकी जो लैंग्वेजेस प्रोसेस होंगी वेदर नेचुरल लैंग्वेजेस या आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास ई कॉमर्स सिस्टम्स होते हैं या रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं, और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर जो है वो आपके पास कंपाइलर्स होते हैं या कमांड इंटरप्रेटर्स होते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस और रिक्वेस्ट टू अपडेट द डेटाबेस, कि वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट करे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए या उसको डेटाबेस को अपडेट करने का। फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, ट्रांजैक्शन इज द कोहेरेंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट स्पेसिफाइज अ गोल।
फॉर एग्जाम्पल फाइंड द टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम लंडन टू पेरिस, तो वो कहाँ डेटाबेस में स्टोर होगा तो वो वहाँ से सर्च करके लेकर आएगा। यूजर्स मेक्स असिंक्रोनस रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस व्हिच आर देन प्रोसेस्ड बाय ट्रांजैक्शन मैनेजर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होगी, एप्लीकेशन लॉजिक होगी, ट्रांजैक्शन मैनेजर होगा, फिर आपके पास डेटाबेस होगा। दिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ एन एटीएम सिस्टम, आपका इनपुट है, आपका जो है वो प्रोसेस होंगे और आपका जो है वो आउटपुट होगा। ये आपका जो है वो एटीएम सिस्टम के हवाले से जो है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। तो इनपुट जो है ये अलग सब सिस्टम है, ये अलग सब सिस्टम है, ये आपका अलग सब सिस्टम है। इसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज है, इसके अंदर मुख्तलिफ सर्विस है, इसके अंदर मुख्तलिफ सर्विस है। ये इनपुट आ रहा है, ये डेटाबेस है जिसके अंदर असर, और ये भी आपका आउटपुट जा रहा है, जो आपको एक लिहाज से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी हो गया। लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आप जो है वो दो मरतबा सेम क्लाइंट नहीं दिखाते, बल्कि ये आपका हो गया एक लिहाज से जो है वो कौन सा आर्किटेक्चर हमने जो अभी पढ़ा था, प्रोसेस ओरिएंटेड। जी हाँ, जिसमें आपके पास जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस दिखाए गए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ व्यू दिखाए गए। ये आपके पास इनपुट व्यू है, ये आपके पास जो है वो आउटपुट व्यू है, और ये आपके पास प्रोसेस है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर एमवीसी व्यू के अंदर आपके पास ये इनपुट का वाला व्यू है, ये आपके पास आउटपुट वाला व्यू है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर जो है आपके पास वह जनरल आर्किटेक्चर दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। These are the transaction-based systems. As interactions with these systems generally involve database transactions that include user interface, user communication, information retrieval, and system database. ये स्लाइड्स मैंने पहले एक्स्ट्रा रखी थी, लेकिन बाद में मैंने जो है उसको मैंने कहा इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे ताकि आपको पता है। ये लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यूजर इंटरफेस होगा, यूजर कम्युनिकेशन होगी, आर्किटेक्चर ऑथराइजेशन होगी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होगा और मॉडिफिकेशन होगी, ट्रांजेक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट होगा। ये मेंट केयर एक एग्जांपल दिया हुआ है मेंटल केयर के हवाले से। आपके पास वेब ब्राउज़र, लॉगिन रोल चेकिंग, फॉर्म एंड मेन्यू मैनेजर, डेटा वैलिडेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पेशेंट इन्फो मैनेजर, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिपोर्ट जनरेशन और इसलिए ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट पेशेंट। तो आप ये भी पॉसिबिलिटी है था आप एक सिस्टम को डिफरेंट तरीके से भी आप लेयर्ड के तौर पे भी शो कर सकते हैं, आप एमवीसी के थ्रू भी शो कर सकते हैं, आप क्लाइंट सर्वर के तौर पे भी शो कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। एज यू सेड देयर डिफरेंट व्यू ऑफ द और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ viewing the system। वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आपके पास होंगी, सर्वर इम्प्लीमेंटेशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम होंगे, आर्किटेक्चर और लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसमें ब्लॉक डायग्राम यूज़ किया गया, सोर्स लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेटर है जिसके अंदर सिंटैक्स चेक होगा और सिमेंटिक्स चेक होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है वो दो चीज़ों में डिकम्पोजिशन होती है, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स जो कि वर्ड टू वर्ड मैचिंग होगी और सिमेंटिक्स जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करेगा। सिंटैक्स क्योंकि शायद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रुक मत जा, तो रुक मत जा होगा, अगर कॉमा जो है वो रुक के बाद लग जाए तो हो जाएगा रुक मत जा, यानी कि मैं उसको रोक रहा हूँ कि आप रुक जाओ मत जाओ, लेकिन कॉमा जो है वो अगर मत के बाद लगा दे तो वो क्या हो जाएगा रुक मत जा, मतलब मैं उसको रोक नहीं रहा कि यार रुक नहीं तू जा। तो सिर्फ एक कॉमा से जो है वो उसकी पूरी की पूरी मीनिंग जो है सिमेंटिक्स उसकी चेंज हो जाती है। तो अगर सेंटेंस होगा तो रुक मत जाओ, हम सेंटेंस चेक करेंगे तो वो तो कंटिन्यूसली वो पढ़ लेगा तो इंटरप्रिटेशन जो भी उसकी आ जाए, लेकिन सिमेंटिक होगी तो वो कॉमा को भी उसको कंसीडर करेगा और बताएगा कि इसका मकसद जो है कहने का ये है कि स्टॉप प्लीज डोंट गो और प्लीज गो डोंट स्टॉप, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट एमसी इंस्ट्रक्शंस की इंटरप्रेटर होगा जो कि फेच और एग्जीक्यूट करेगा जो डेटा आएगा आपके साथ और फिर उसको रिजल्ट करेगा, ठीक है। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। कंपाइलर कंपोनेंट्स आपके होंगे, इसके अंदर आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिपोजिटरी होगी, आपका एडिटर होगा, प्रिटी प्रिंटर होगा, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ग्रामर डेफिनेशन, सिंबल टेबल, आउटपुट डेफिनेशन, ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेशन, semantic analyzer, syntax analyzer and lexical analyzer, and this is the central repository. So this is a repository based architecture of a language processing system, and this is
the block diagram of a block based architecture of the language processing system for the similar kind of system. पाइप एंड फिल्टर कंपाइलर आर्किटेक्चर आपका लेक्सिकल एनालिसिस, सिंथेटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, कोड जनरेशन और सिंबल टेबल और सिंटेक्स ट्री, तो उसी आपके लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को उसने पाइप एंड फिल्टर कंपाइलर आर्किटेक्चर के थ्रू भी शो किया हुआ है. ओके गाइस, so this is the end of the lecture. As you can see कि आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास सेवरल स्टाइल्स हैं. तो जब भी आप रिपोर्ट वगैरह बनाओगे, जो भी सिस्टम आप डिज़ाइन करने के लिए जाओगे, आपको सिस्टम आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाएंगे. उनमें वो आप इनमें से कोई भी पैटर्न जो है आप यूज़ कर सकते हैं. तो इनमें से जो चंद पैटर्न में यूज़ किए हैं, उनमें से देख के जो भी पैटर्न आपको उसके अपनी एप्लीकेशन के हवाले से मैच होता है, इस पैटर्न को उठा के आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लें और आपने जो रिपोर्ट के अंदर डाल दें या आपने प्रोजेक्ट F5 के अंदर डाल दें और उसको ये मेंशन कर दें रिपोजिटरी आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम रिपोर्ट और द MVC कंट्रोलर व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, या तो आप पाइप एंड फिल्टर व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. इनमें से ही आप जो है वो चूज़ करके जो है कोई ना कोई आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर टेस्टेड एंड ट्राइड इन द इंडस्ट्री. Okay guys, so this is the end of our lecture software design part 2, and inshallah will be coming I'll be coming in with the new lecture that will be more related to the software implementation or software quality assurance. Okay.